हो गया? ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ पढ़ते पढ़ते. यस माय डियर किड्स, वी आर नाउ इन द एक्सरसाइज 7.5. ऐसे ही साथ बना रहे आपका, इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ अपना ये टॉपिक स्टार्ट, फ्रैक्शंस फॉर क्लास 6 एंड द चैप्टर इज क्लास 7. So yes, your honey ma'am is welcome back to my channel, and yes, today I am going to explain 7.5 as we have done 7.4 till 7.4 and we did so many questions on it. And let's start 7.5. Today's topic is again the same thing. We are going to do the additions and subtraction on fractions. ठीक है, let's start. Write these fractions appropriately as addition or subtraction. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट, दिस इज 1/5. ओके, दिस इज 2/5. इफ यू विल ऐड दिस यू विल गेट 3/5. ओके, अगेन देन हियर दिस इज 1/1. ओके, और you can say 1 2 3 4 5, so 5/5. take it as 5/5 and this is your 3/5. when you will subtract this you will get 2/5. done. Okay, now next, what is this? 2/6. here 3/6. when you will add this you will get 5/6. okay, so this is how you are going to do the fractions and the questions based on it we are just going to do. And the questions are question number 2. First question is solve. Solve means you need to solve whatever is been given here. ठीक है, तो this is question number 2 का first we are going to do 1/18 plus 1/18. if the denominators are same just write it once and do the operations for the numerator and you will get 2/18 or 1/9 in a reducible form. ठीक है, both the answers are correct. Okay, now next question, question number, this is A, this is B. 8/15 plus 3/15. again the denominators are same, write it once and do the operations for numerator. this is 11/15. again it is done. now see question number C. 7/7 minus 5/7. the denominators are same, write it once, do the operation for numerator and you will get 2/7. done. ठीक है, then again 1/22 plus 21/22 will give you 1 plus 21 is equals to 22/22 or 1. ठीक है, तो here you will have 1 as your whole. ठीक, now E, what is the E1? 12/15 minus 7/15 will give you 12 minus 7 upon 15 will be 5/15, which is also equals to 1/3 in a reduced form, simplest form. ठीक, then F, 5/8 plus 3/8 you will get 5 plus 3 upon 8 will be 8/8 or 1. both the answers are correct. then G, 1 minus 2/3, this will be 1/1 minus 2/3. here the denominators are not same, make it same by equivalent fraction and then here 3 minus 2 upon 3 will give you 1/3. ठीक, तो here 3/3 it is already done, written here कि in place of 1 you can write 3/3 and you will get the final answer. In place, if you are not knowing, rather you are not want to do, you don't want to do this 3/3 multiplication, you can take it 1 as 3/3. ठीक है, no issue, the answer will be same. here 1/4 plus 0/4 will give you 1 plus 0 upon 4 will be 1/4 itself. done. directly you don't need to do this, like 0/4 तो 0 ही होता है,
it should not be like that, but do in a proper way, which is actually stepwise for you, and this will be definitely very much clear. Okay, now next start third question. What is that? Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. Okay, पेंटिंग हो गई है शुभम के थ्रू कितनी वॉल की 3/5. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. शुभम पेंटेड द पोर्शन ऑफ वॉल. हाउ मच? 2/3. His sister Madhvi helped and painted 1/3. Okay, Madhvi painted 1/3. Therefore, they painted together. They painted together. How much? Just see, 2/3 plus 1/3 will give you 2 plus 1 upon 3 will be 3/3 or the whole wall. ठीक, 1 will be your answer. Done. ठीक. Next, what is that? My missing fraction. What is that missing fraction? Let's see. Doing A, 7/10 में क्या subtract करेंगे जो 3/10 आ जाएगा. तो 7/10 मतलब डिनोमिनेटर तो सेम होगा ही होगा ऑफकोर्स, तो दोनों में 10 हमने लिख दिया. 7 में हम क्या माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे जो 3/10 आ जाएगा. डन. ठीक. बी देखो आप इसका, डैश माइनस 3/21. 3/21 किससे माइनस होगा? जो 5/21 आ जाएगा. आपके आंसर में 21 है, आपके क्वेश्चन में भी 21 है, मतलब आपके जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे 21 तो डेफिनेटली होगा. अब किस नंबर से हम 3 माइनस करेंगे जो 5 आंसर आएगा? ऑफकोर्स 8 माइनस 3 करो, आपका आंसर आ जाएगा 5. ओके, सो दिस इज 5/11. देन नेक्स्ट सी, 3/6 किसमें से सब्ट्रैक्ट किया? जो 3/6 आया. इसका मतलब आपके डिनोमिनेटर में तो 6 है ही, क्योंकि 2 नंबर्स आपके 6 डिनोमिनेटर एज है, तो आपका थर्ड नंबर में भी डिनोमिनेटर 6 होगा. ठीक है. अब किसमें से, कौन से नंबर में से 3 माइनस करने पर 3 आता है? 6 में से. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. डन. डी, बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को. 5/27 इज इक्वल्स टू 12/27. तो मतलब डिनोमिनेटर डेफिनेटली 27 है, उसको तो आप कुछ लो ही मत और, है ना. तो किस में 5 में क्या प्लस करेंगे जो 12 आ जाएगा? 7 प्लस 5 करते हैं तो 12 आ जाता है. देखिए आपका कितना सिंपली मिसिंग नंबर सॉल्व हो चुका है. गॉट इट. नेक्स्ट, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस. ओके, what fraction of oranges was left? Let the total fraction of basket of oranges be 7/7. 7/7 को 1 कहते हैं. ठीक है ना. गॉट इट. अब आप बोलेंगे मैम 7/7 कैसे आया? आपका डिनोमिनेटर देखिए कि में 7 है, तो अब तुरंत होल बनाना है ना, तो सेम नंबर अपॉन सेम नंबर होता है. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है. गॉट इट. तो यहाँ पे आपने ले लिया 7/7. जावेद गिवन हाउ मच? 5/7. ठीक है. देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन? लेट्स सी. 7/7 में से 5/7 जावेद ने दे दिया, बचा कितना? 7 माइनस 5/7 विल गिव यू 2/7. डन. ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. था ना कितना इजी क्वेश्चन था. बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया. अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 7.6. इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So let's start without wasting time. Here you will get the denominator which is not equal. You have to make it equal by taking equivalent fraction or by taking the LCM of it. ठीक है. तो let's start without a single second, which should not be waste, and just do the question because we have many questions in this chapter, in this exercise. Sorry. So this is first questions का A वाला part. 2/3 plus 1/7.
डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सेम कर लीजिए। 2/3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 7/7 का, और 1/7 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3/3 का। सबसे सिंपल वे होता है ये करने का। डिनोमिनेटर्स दोनों एक दूसरे से क्रिस क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। ऊपर आएगा आपका 14/21, यहाँ आपका आएगा 3/21। अब डिनोमिनेटर्स हो चुके हैं सेम, कर लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए 14 + 3 कर लीजिए 17/21। डन, फर्स्ट आंसर आपका डन। नेक्स्ट करते हैं बी। व्हाट इज़ दैट? 3/10 और 7/15। तो 3/10, 10 और 15 में हमारा एक नंबर है जो बहुत कॉमन है, वो है 30। दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो भी आपका आ जाएगा 30। तो मैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सोचती हूँ, ठीक है। एलसीएम मतलब मैं ऐसे देखती हूँ कि दोनों नंबर्स में क्या कॉमन फैक्टर है, वो मैंने तुरंत कर दिया और यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके हमको मिल गया है आपका, ये आपका आ गया है 9/30 + 14/30, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख लीजिए, 9 + 14 कर दीजिए यहाँ पे आप, और आ जाएगा आपका 23/30। डन, ठीक। अब इसका आप सी देख लीजिए। व्हाट इज़ दैट सी? 4/9 है और 2/7 है, ठीक है। अगेन 4/9 में इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और 2/7 में इंटू 9 कर लीजिए। इनका कॉमन फैक्टर तो 63 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28/63 + 18/63, ठीक है। 28 + 18 कर लेंगे आप तो 46 आ जाएगा /63। आ गया आपका आंसर फाइनल, ठीक। डन। अब हम इसका f कर लेते हैं। व्हाट इज़ दैट f? 4/5 + 2/3। अगेन 4/5 में प्लस कर लीजिए आप 3 × 3 इंटू कर लीजिए सॉरी, और 2/3 में आप मल्टीप्लिकेशन कर ले आइए 5/5। दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। आ गया है आपका डिनोमिनेटर सेम, ये बन गया है 15 और ये भी बन गया है 15। अब डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, लिख दीजिए एक बार और न्यूमरेटर्स को कर दीजिए सॉल्व। ये आपका आ गया 22/15। डन, ठीक। अब हम करते हैं इसका k। व्हाट इज़ दैट k? 1/3 + 3 2/3, ठीक है। मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 3 × 1 3 + 1 4/3 + 3 × 3 9 + 2 11/3। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 3 4 + 11/3 15/3 आ जाता है आपका आंसर 5। डन, ठीक। नेक्स्ट इसका करते हैं हम L। व्हाट इज़ दैट L? 4 2/3 + 3 1/4। इससे मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 3 12 12 + 2 14 14/3 + 3 4 12 12 + 1 13/4। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो 14/3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 4 का, और 13/4 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का। तो डिनोमिनेटर्स आ चुके हैं सेम। अब डिनोमिनेटर सेम के बाद हम लोग न्यूमरेटर्स को देख लेते हैं कितना आया है। 56/12 + 39/12। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लीजिए आप, और 56 + 39 को ऐड कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 95/12, फाइनल आंसर। डन। इसको आप मिक्स में लिखना चाहते हैं, मिक्स में लिख सकते हैं। तो विच विल बी इक्वल्स टू लाइक 8 × 108 आता है, 7 × 96 आता है, तो क्या 94 आता है। तो 7 से आ गया 94, 1/12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 12 7 × 94 और 1/12, ठीक है। 12 7 × 94 होता है, सोचिए 12 7 × 94 होता है कि 84 होता है? 12 7 × 94 होता है कि 84 होता है? ध्यान से देखिए आप, मैंने बोला और आपने क्रिस क्रॉस में लिखा भी नहीं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें 12 प्लस करेंगे तो 96 होगा, गॉट इट। तो आपका 84 आया है, तो 95 - 84 करेंगे तो आपका 11 आएगा। ये रहा आपका 11, ठीक है। सो यू हैव क्रॉस चेक योर सॉल्यूशन 2, ठीक है। देन फाइनली हम करते हैं nth वाला क्वेश्चन, एंड दिस इज व्हाट 4/3 - 1/2। अगेन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वाला डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। हियर यू विल गेट 8/6 - 3/6, this will be equals to 8 - 3/6 will give you 5/6. Done.
ठीक है, एक और कर लेते हैं m वाला क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपके बहुत कम क्वेश्चन हों जो आपको खुद से करने हैं। 16/5 माइनस 7/5, बहुत सिंपल है। 16 माइनस 7/5 विल बी 9/5। डन। ठीक, तो मैंने जिस क्वेश्चन को नहीं किया है वो है डी ई। ठीक है, मैंने डी नहीं किया है, ई नहीं किया है, जी नहीं किया है, एच नहीं किया है, ठीक, और आई नहीं किया है, बस बाकी हमने सब ऑलमोस्ट सब किए हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस आपके हैं, वो आपको खुद से करने हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस में जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। उसमें डेफिनेटली आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपका ये ध्यान में इंपॉर्टेंट है रखना कि you need not to add this two numbers also as a denominator। ठीक है, you are just doing the operation for numerator not for the denominator। for denominator you need to write it once only। ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, 7th वाले बच्चे भी करते हैं, 8th वाले बच्चे भी करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 9th वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक, got it। so first motto is to see the denominators are same or not। if it is not same, make it same like this। ठीक है, once you will get the denominator same, just do the operation for numerator only। operation means addition or subtraction। this method is not followed for the multiplication of the rational numbers or the fractions। यहाँ पे multiplication या division होगा ना तो आप ये नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय, देखो सब्ट्रैक्शन था तो भी हमने ये मेथड यूज़ किया, एडिशन है तो भी हमने ये मेथड यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये मेथड यूज़ नहीं होगा। मेक इट क्लियर इनटू योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने लाया 2/5 मीटर ऑफ रिबन और आपके पास है ललिता ने लाया 3/4 मीटर ऑफ रिबन। टोटल रिबन कितनी हुई? ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रिबन दोनों ने कितनी लाई? तो देखो, रिबन परचेस्ड बाय Sarita, how much? 2/5 meter। ribbon purchased by ललिता। ये सरिता और ललिता बहुत कॉमन नेम है ना, वी आर टेकिंग सो मेनी टाइम्स। सो हियर इट इज, एंड नाउ दे बोथ परचेस्ड, नहीं ऐसा नहीं, हम लिखते हैं द टोटल लेंथ ऑफ रिबन, द टोटल लेंथ ऑफ रिबन, व्हाट विल बी दैट? देख लीजिए ध्यान से, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर डिनोमिनेटर। ठीक है, 3/4 में आप 5 मल्टीप्लिकेशन, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। डिनोमिनेटर सेम आते ही आपका मेन पर्पस है आपको न्यूमरेटर्स को सॉल्व करना है, ख़त्म। देखिए सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व मतलब एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन, इनको ऐड करिए आपका आंसर आ जाएगा 23/20 मीटर। डन, कुछ करना ही नहीं है और। गॉट इट? नेक्स्ट, नैना वॉज गिवन 1.5 piece of cake, Nazma was given 1/3 piece of cake। total amount of cake was given to both of them। ठीक है, नैना got नैना's piece of cake लिखती हूँ मैं। ठीक है, piece of cake कितना है? 1/2 मतलब कि 3/2। गॉट इट? एंड नज़मा's piece of cake, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार समझ में आ जाना चाहिए आपको कि हाउ टू मेक द स्टेटमेंट। बस 1/3 मीन्स 4/3, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ केक was given to both of them। लास्ट का स्टेटमेंट एज इट इज़ उतार लीजिए, नो इशू। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मैटर क्या है एक्चुअली? टू सॉल्व दिस फ्रैक्शंस। अगेन वी गॉट द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मेक इट सेम। ठीक है, 3/2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4/3 इंटू 2 इंटू 2, you will get 9/6
प्लस 8/6, 9 प्लस 8 अपॉन 6, 17/6। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यू विल गेट एज मिक्स फ्रैक्शन 2 5/6 पार्ट। ठीक, कम टू दिस क्वेश्चन। Here you will definitely get the different denominator, so here you have to choose कि which denominator should you have to go with। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, मैं इस वाले डिनोमिनेटर को सेम कर लेती हूँ, अब आपको और आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए डैश माइनस 5/8 विल गिव यू 2/8। अब आपका डेफिनेटली 8 तो यहाँ पे है ही है, तो किस नंबर से क्या 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। कौन सा ऐसे नंबर है जिससे 5 माइनस करेंगे जो 2 आ जाएगा, 7। देखिए आ गया ना फाइनल आंसर। ऐसा करना है आपको। देखिए बी इजी था, बहुत इजी था, ध्यान से समझिए। डैश माइनस 1/5 विल गिव यू 1/2। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आया देखिए आपका आंसर 2/10 इज इक्वल्स टू 5/10। मतलब आपका डेफिनेटली इस पहले डिनोमिनेटर में 10 तो आना ही आना है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 माइनस होगा तो 5 आएगा, 7। कोइंसिडेंटली दोनों का न्यूमरेटर 7 आया है, इट डजंट मीन कि ये सारे ही आंसर आपके 7 के फॉर्म में आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। इजी था, पहले में आपको सिर्फ एक डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ा, दूसरे में आपको दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा। तीसरा देखते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 1/6 आएगा, तो 2 को 6 बनाने के लिए इंटू 3 कर लेते हैं ना। देखिए हो गया ना, दोनों में 3 करना है अपने को, हमको 3 बनाना है इसको 3। क्यों? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए। ये देखिए अब 3 हो गया। ये देखिए 3/6 में से क्या माइनस करूँगी जो 1/6 आ जाएगा। 3/6 में से 2/6 माइनस करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। आया ना, कितना सिंपल है। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपका एक ही काम है, आपको आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द कंप्लीट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स वी हैव डन ऑलरेडी अबाउट फॉर यू। तो यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 4 + 2 कितना होता है 6/3। ठीक, फिर आपने क्या किया 1/3 और 2/3 को ऐड किया। यहाँ पे क्या होगा 1/3 और 2/3 को ऐड किया तो आपने 3/3 बना। 3/3 का मतलब 1 भी होता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए आए, 2/3 में से 1/3 माइनस हुआ तो 1/3, 4/3 में से 2/3 माइनस हुआ तो 2/3, 6/3 में से 3/3 माइनस हुआ तो अगेन 3/3 बचेगा। 6/3 में से 3/3 माइनस हुआ तो 3/3 या फिर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सब्ट्रैक्शन वाला बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया। ये वाला मत करिए तो भी चलेगा, है ना, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर क्या था कि इसको सॉल्व करना है, किसको, इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये तो आपका एडिशन करना है आपको, तो आप कर सकते हो बिल्कुल इसमें। ये देखिए 1/3 + 2/3 = 3/3। देखिए वहाँ से सब्ट्रैक्ट किए थे तो भी 3/3 आया था, यहाँ से एडिशन किए तो भी 3/3 आया है। गॉट इट। अब ये बी आपका रहेगा होमवर्क, आप ये खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बी विल बी योर फाइनल व्हाट आंसर you have to do on your own. Got it? Now do question number 6. What is that? A piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. Okay. Total length of wire कितनी है 7/8 मीटर। मतलब ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 7/8 मीटर। ठीक है, 1 piece was given 1/4 मीटर। Length of one piece, what is that? 1/4 meter. Therefore required length of अदर पीस, दूसरे पीस की क्या लेंथ होगी। बहुत सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7/8 माइनस 1/4 करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सेम करिए। हो गया डिनोमिनेटर सेम। 7/8 माइनस 2/8 विल गिव यू 5/8 मीटर। आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नंदनीज हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदनी का घर जो है, नंदनी का घर स्कूल से, ये उसका घर है, ठीक है, दिस इज हिज हाउस और ये उसका स्कूल है। ठीक है,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 9/10 किलोमीटर है। कितना है? 9/10 किलोमीटर। शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच। ठीक है, इस यहाँ से पूरा यहाँ तक के डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ तो उसने वॉक किया और हाफ किलोमीटर उसने बस से लिया और इतना पूरा उसने क्या किया? वॉक किया। तो बताइए कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 9/10 किलोमीटर है तो उसमें से हाफ किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना किलोमीटर आपका बचेगा जिससे उसने वॉक किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन नंदिनी's house and her school is 9/10 kilometer. Distance covered by bus how much? 1/2 kilometer. Therefore required distance required distance on her foot, है ना, उसने अपने पैदल चल के भी किया है। ठीक है, what is that? 9/10 minus 1/2. Again denominators are not same, make it same. You will get 9/10 minus 5/10 will give you 4/10 किलोमीटर। डन। ठीक है, तो 4/10 किलोमीटर उसने पैदल चल के कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट तो आई विल डू, 8th आई विल डू एंड 9th विल बी योर ओन होमवर्क, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो आई एम टेलिंग यू टू यू, मतलब अभी से ही बता दे रही हूँ कि यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, दिस 9th क्वेश्चन। नाउ द 8th क्वेश्चन विल बी सैमुअल एंड आशा हैव बुक शेल्फ ऑफ सेम साइज। ओके, दोनों के पास अपनी अपनी बुक शेल्फ है जिसमें उन्होंने बुक्स रखी हैं। ठीक है, और उन्होंने पार्टली फिल की है बुक्स को, मतलब पूरे शेल्फ में बुक्स नहीं है, कहीं कहीं बुक्स है, कहीं कहीं नहीं है। आशा शेल्फ इज़ 5/6, मतलब 6 में से 5 हिस्से उसके फुल हैं बुक से। ठीक है, सैमुअल के शेल्फ में 2/5 है, मतलब 5 हिस्सों में से 2 ही पार्ट उसके फुल हैं। तो बताओ कि किसका ज़्यादा फुल है और कितने फ्रैक्शन से फुल है। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? आशा और सैमुअल है बुक शेल्फ ऑफ सेम साइज। ठीक है, फिल्ड। ठीक है, माई सॉल्यूशन विल बी लाइक दैट, बुक शेल्फ, आशा's बुक शेल्फ, आशा's बुक शेल्फ filled by 5/6 part. ठीक है, and Samuel's by 2/5. ठीक है, therefore on comparing, ठीक, 5/6 and 2/5, just we have to multiply and make the denominator same so that we can get the right answer 30, and here it is 12/30. Here this is the greater one. Okay, here it is greater one, so it means therefore whose bookshelf is more full? Asha's bookshelf is more full than Samuel by, अब पूछा ना उसने कितने फ्रैक्शन से, तो लिखो by 25 minus 12/30 is equals to 13/30। बस ख़त्म। ठीक है, तो आशा का बुक शेल्फ सैमुअल के बुक शेल्फ से ज़्यादा भरा हुआ था और वो बाय 13/30 पार्ट फुल था। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड you have done the comparison on fractions, number lines on fractions on a number line,
एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और नंबर, मैनी मोर वी हैव डन इन दिस चैप्टर। तो ये था आपका ये चैप्टर का लास्ट पार्ट, एंड thank you for being with me for till the end of this part, and thank you so much. With this hope, I'm just ending this video and hoping for your saath, है ना, in my next video. Thank you so much. Have a nice day. Stay tuned. Be with me. Don't bother your parents and be happy. Have a nice day.